حوالے سے ایک ایسے نوجوان لڑکے کو انٹروڈیوس قصور کی تاریخ میں کروانے جا رہے ہیں جس نے آن لائن انٹرپرینورشپ کی ایکٹیویٹیز کو نہ صرف انٹروڈیوس کروایا ہے بلکہ قصور کا نام بھی روشن کیا ہے. اس حوالے سے بات کی جائے تو مسٹر یوسف جو جن کا تعلق قصور سے ہے اور ایک ایسی کمپنی کے اونر جو آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ مل کر یہ پاکستان میں انہوں نے کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہے. اس کنسیپٹ کا نام یا بزنس کی بات کی جائے تو ایک بندے کو ایسے عجیب سی فیلنگز آتی ہے کہ اور نام بھی ایسا یونیک ہے کہ اگلے بندے کو اٹریکٹ کرتا ہے, جم پاسپورٹ. تو سب سے پہلے میں مسٹر یوسف کو ویلکم کروں گا آواز سٹی 49 چینل میں, اور ان سے میرا بیسک کویسچن یہی ہے کہ جم پاسپورٹ کا نام کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بیسیکلی جم پاسپورٹ جو ہے وہ ایک یونیک کانسیپٹ ہے کہ یار کہیں پر بھی آپ کو آؤٹ آف کنٹری ٹریول کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بغیر آپ کو جو ہے نا وہ الاؤ نہیں کرتے. تو اگر آپ آؤٹ آف سٹی جا کے کسی جم کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ پاسپورٹ کی طرح ہونا چاہیے تاکہ آپ اگر اپنی سٹی سے علاوہ کسی اور سٹی میں جا کے بھی جم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو الاؤ کیا جائے. تو دیٹس ہاؤ سم ٹائم ہم جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا گیا جم اور پاسپورٹ اور کمبینیشن جو ہے نا وہ جڑ گیا اور الحمدللہ کافی جو ہے نا وہ آڈینس نے پسند کیا اس نام. یہ انٹرپرینورشپ کی ایکٹیویٹیز میں جم کی جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور آج کل کے بزنس میں جہاں پہ عام ایک ٹیکنالوجی کا زمانہ آ چکا ہوا ہے جس میں ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے سروسز کو اڈاپٹ کیا ہے. تو جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک کنسیپٹ بزنس کا کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ فزیکل پروڈکٹ ہونی چاہیے, اس حوالے سے بات کی جائے تو آپ نے پروڈکٹ کی بجائے سروسز کو یوز کیا ہے. دیکھیں جی, دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے مائکروسافٹ, تو اس کی کوئی فزیکل پروڈکٹ نہیں ہے. ہاں ان کا کچھ کمپیوٹرز اور یہ والی ضرور ہیں ونڈوز وغیرہ کے, لیکن وہ ایک $1 ٹریلین کمپنی بنی ہے اپنی صرف سبسکرپشن کی وجہ سے اور اپنی سروسز دینے کی وجہ سے. سو آئی تھنک یہی آج کل کا دور ہے کہ جو ایک سبسکرپشن بیسڈ بزنس ماڈل ہوتا ہے وہ زیادہ سکسیزفل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پروڈکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یار دیکھیں نوکیا تھا وہ پروڈکٹ بیچتا تھا, اس نے اپنی پروڈکٹ میں انوویشن اتنی نہیں کی جس کی وجہ سے اس کو ریپلیس کر دیا اینڈرائڈ نے, اور سیمسنگ جیسے جو ہے نا وہ بڑے پلیئر بن گئے ہیں. جو سبسکرپشن بیس ماڈل ہوتا ہے اس کو میں آپ کو زیادہ کچھ جو ہے نا وہ انوویشن نہیں کرنی ہوتی ہے, آپ کو بس ایک یونیکنس جو ہے نا وہ مینٹین رکھنی ہوتی ہے اور یہ بزنس جو ہے نا سبسکرپشن بیس فلرش کرتا رہتا ہے. آپ جو جم کا بزنس کر رہے ہیں آپ کے میجر کلائنٹس کون سے ہیں؟ بیسیکلی جم پاسپورٹ میں آپ کو بتا دوں ہے کیا. جم پاسپورٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کارپوریٹ جو ہے نا ان کے امپلائیز کی ہیلتھ اور ویل بینگ کو کیٹر کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو امپلائی ہے نا وہ ہیلتھیئر اور جو ہے نا وہ فٹر رہیں ان دیز انسرٹن ٹائمز. تو ہم چاہتے ہیں کمپنی اونر کے پاس کہ یار جہاں پر آپ اس کو 50-60 ہزار روپے سیلری دے رہے ہو, سو وائی ناٹ انویسٹ لائک 2,000 to 4,000 آن دیئر ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. کیونکہ امپلائی جو ہے اس کو اگر امپلائیز کی ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کی جائے تو وہ آرگنائزیشنز میں ہیلتھ انشورنس, میڈیکل انشورنس اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, تو یہ تو ان کے اوپر ایک ایڈیشنل ایکسپینس آ جاتا ہے کہ وہ 2-4 ہزار روپے اور بیئر کریں. یہ بالکل بہت اچھا جو ہے نا وہ آپ کا کویشچن ہے. پاکستان کے اندر نا ہیلتھ اور ویل بینگ کو صرف جو ہے نا وہ انشورنس اور جو ہے نا وہ میڈیکل الاؤنسز کے اوپر جو ہے نا چھوڑ دے رہے, تو وہ آپ ہیلتھ اور ویل بینگ نہیں دے رہے. وہ تو بندہ جب بیمار ہو رہا ہے پھر جا کے وہ کلیم کر سکتا ہے کہ یار یہ میرا میڈیکل بل ہے, یہ مجھے ریمبرس کر دیں, یا یہ میری انشورنس بنتی ہے اور یہ مجھے جو ہے نا وہ کلیم کروا کر کے دیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ یار آپ نے اپنے امپلائی کی باڈی کے اوپر انویسٹ کرنا ہے کہ وہ کیونکہ دیکھیں بیماری صحت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن اس باڈی کو مینٹین کرنا جو کہ آپ کا جو ہے نا وہ سب سے بڑا ایسٹ ہے اس دنیا کے اندر, کیونکہ اسی باڈی سے آپ جو ہے نا وہ ساری زندگی کماتے ہیں. تو اس کے اوپر ہی اگر آپ 2-4 ہزار انویسٹ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی پھر آپ انشورنس کلیمز ہی کرواتے رہیں گے. نہیں, اس کے لیے انویسٹمنٹ کی اگر بات کی جائے باڈی کے اوپر تو موسٹ آف دی پیپل ڈاکٹرز اور دوسرے لوگ 2 چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی ڈائٹ کو خوراک کو بہتر کرنا ہے, دوسرا وہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. تو ڈائٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آرگنائزیشن جتنی ایک انسان کی کیپیسٹی ہے ارننگ کے حوالے سے وہ پے کرتی ہیں اور وہ اس میں سے ڈائٹ کو بھی یوز کرتے ہیں. دوسری ایکسرسائز کی بات کی جائے تو آپ نے بھی ایک کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا جم کا. جم کی فیسلٹیز میرا نہیں کیا کہ پاکستان میں کسی آرگنائزیشن کے اندر موجود ہے. نہیں بالکل, جو آپ کو ٹریڈیشنل ایک کمپنی ہوتی ہے اور ایک کمپنی ہوتی ہے تھوڑی سی ایڈوانس لیول کے اوپر, جن کے معاملات, جن کے کاروبار, جن کا بزنس
जो है ना वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है, जिसमें मोस्टली हम टारगेट भी उन कंपनीज को कर रहे हैं जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, अपनी जो है ना आईटी इंडस्ट्री की सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो उनका लिंक उनके साथ होता है, तो वो उनके इन हाउसेस जिम भी होते हैं, छोटा सा सेक्टर में वो बना लेते हैं अपने, जिसमें 2-4 जो है ना ट्रेडमिल की मशीन रखनी और बेसिक इक्विपमेंट वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इन हाउस भी आप बना सकते हैं, लेकिन इन हाउस बनाने के 3 आपको जो है ना वो मेजर इश्यूज आते हैं। नंबर 1, आपको एक फिक्स्ड जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी है। नंबर 2, आपको मंथली उसके ऊपर जो है ना उसके मेंटेनेंस चार्जेस पे करने हैं, और फिर आपको उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बियर करनी होती है, जो कि आजकल में दौर में पाकिस्तान में जो हालात है वो बड़ी एक्सपेंसिव है। और नंबर 3, आप ये कर रहे हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैक्सिमम अर्निंग करना चाह रहे हैं। जिन लोगों का सेटअप पहले ऑलरेडी अवेलेबल है और आप कॉर्पोरेटाइजेशन के पास जाते हैं और उनको आपस में कोलैबोरेशंस करवाते हैं और बीच में अपनी कमीशन डिसाइड करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, हम कमीशन वगैरह के ऊपर काम नहीं करते। हमने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, हमने 300 जिम्स जो है ना जिम ऑनर्स हैं उनके साथ एक बात की, एक परसेंटेज सेट की है जो कि हम उनको पे करते हैं, और फिर हम कंपनी के पास जाते हैं कि आपकी ऑफिस जो कि मल्टीपल सिटीज के अंदर है, तो वो सारे एम्प्लॉइज जो है ना अपने घरों के नज़दीक, ऑफिस के नज़दीक जिम में जाके वर्कआउट कर लेते हैं। महीने के एंड के ऊपर हम एक जो है ना वो फिक्स्ड अमाउंट की इनवॉइस कंपनीज को कर लेते हैं। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जी आपने ओनर को अट्रैक्ट करना है, क्लाइंट को नहीं करना। कंपनी के ओनर को आपने अट्रैक्ट किया है, कंपनी के ओनर को अट्रैक्ट करने के बाद आपकी जो उसके जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो अपने इलाके के किसी भी जिम में जाके ये सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही हमारा बेसिक पर्पस है। और ऑनेस्टली बताऊं तो ऑनर तो ऐसा जितना जो है ना वो वरीड नहीं होता इन पॉलिसीज के बारे में। ये पॉलिसीज बनाते हैं एचआर मैनेजर्स और जो एडमिन का स्टाफ होता है, वो देखते हैं कि हाउ वी कैन रिटेन आवर एम्प्लॉइज, और फिर वो ये इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं ताकि एम्प्लॉइज की एंगेजमेंट अच्छी रहे। अच्छा, एक और बात की जाए तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये भी है कि ड्यूटी आवर्स कहा जाता है कि तकरीबन 8.5 घंटे या 9 घंटे ड्यूटीज बनती है। लोगों की जो ट्रैवलिंग को टाइमिंग को अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 12 से 13 घंटे ड्यूटीज प्राइवेट सेक्टर में चली जाती हैं। 12 से 13 घंटे प्राइवेट सेक्टर में ड्यूटी करने के बाद आप फिर अंदाजा लगाएंगे कि वो आधा घंटा या घंटा अपनी हेल्थ के ऊपर करे, तो क्या आप समझ गए ये चीज पॉसिबल है? देखें, ये 12 से 13 घंटे वाला जो है ना वो डिपेंड करता है। अगर तो आप सेम सिटी के अंदर जो है ना वो जॉब करते हैं, देन आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना जो है ना टाइम ऑफिस में गुजारने की जरूरत होती है। आप अपने 8 आवर्स के बाद अपना इजीली घर में आ जाते हैं। हाँ, अगर आप आउट ऑफ सिटी से आते हैं और आपको बैक होम जाना होता है, सो देन आप इतना टायर्ड हो जाते हैं और आपको जो है ना वो जिम का टाइम नहीं मिल पाता। सो बेसिकली साइंटिफिकली और अगर हमारी फिजिकल नीड के बारे में देखा जाए ना, तो एवरी ह्यूमन बीइंग जो है ना उसको 10,000 स्टेप्स रोजाना के लाजमी पूरे करने हैं, चलने होते हैं, जो कि उसकी बॉडी को एक अच्छी शेप के अंदर रखने में और उसके जो ऑर्गन्स हैं उनको जो है ना वो हेल्दी रखने के लिए जो है ना इनाफ होते हैं। तो अगर तो आप ये इतना टाइम निकाल लेते हैं, चाहे आप वॉक करने चले जाएं, पार्क में चले जाएं, चाहे आप जो है ना कोई ऐसा सिस्टम बना लें कि आपके पास नजदीक जिम है, वहां पर जाके 10 मिनट ट्रेडमिल के ऊपर वॉक कर लें, तो आपके लिए इनाफ है। एक और भी चीज देखी गई है कि जिस तरह आपने कहा कि आपने कॉर्पोरेशन को टारगेट किया है, कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉई हैं जो जिम के साथ मुंसलिक होते हैं वो अपने इलाके की जिम को ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं, तो कभी आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस का किसी जगह पे क्लैश आया है कि जो एम्प्लॉई वो पहले ही उस जिम में सर्विसेज अपनी ले रहा था, इसी के साथ आपने चूंकि उसकी कंपनी को टारगेट कर दिया तो अब वो कंपनी के रेफरेंस से आ रहा है, तो जो आपका आपस में डिसाइड होता है ओनर्स के साथ है, जिम ओनर के साथ, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट? हाँ बिल्कुल, ये स्टार्टअप जो कि हमारा था, तो हमने शुरू के जो है ना वो कुछ मंथ्स के अंदर ये चीज़ जो है ना वो काफ़ी फेस की है, लेकिन इसमें हमने फिर अल्टीमेटली किया ये था कि हमने जो है ना जिम ऑनर्स को ये कन्विंस किया कि यार हम खाली आप एम्प्लॉई को आपके जिम के अंदर भेजेंगे, आप उसको अपसेल कर सकते हैं, क्योंकि जिम पासपोर्ट से आप सिर्फ वहां पर जाके जिम के इक्विपमेंट्स की एक्सेस होती है। उसके अलावा जिम ऑनर उसको पर्सनल ट्रेनिंग सेल कर सकता है, उसके अलग चार्जेस लेगा। उसके अलावा वो डाइट प्लान सेल कर सकता है, वो भी अलग चार्जेस हैं। अगर कोई स्विमिंग पूल, स्पा, साउना, जकूजी ये फैसिलिटी दे रहा है, वो भी अलग चार्जेस है। सो बेसिकली हम उनके पास कस्टमर भेजेंगे और वो अपने जो है ना अपसेल भी कर सकते हैं हमारे क्लाइंट्स को। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि ये वाला क्लैश आपने किसी हद स्टार्टिंग में आपको जरूर आया और बाद में ये खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक। अच्छा, इसको चूंकि ये सर्विसेज का बिजनेस है तो इसको कहा जा सकता है कि ये बिजनेस जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसके स्टार्टअप के लिए आपको क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ी है?
एग्जैक्ट कॉस्ट तो आई डोंट थिंक सो मैं डिस्क्लोज कर पाऊंगा, और लेकिन आई थिंक कि आपके पास अगर एक रीजनेबल अमाउंट है जो कि आप एक पाकिस्तान के अंदर किसी लाहौर की सोसाइटी में एक प्लॉट लेना चाहें, तो आप वो प्लॉट ना लें, तो आप इस तरह का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। नहीं, इस बिजनेस की अगर बात की जाए तो ना बेसिकली मैंने जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये कि सर्विसेज को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो जहां पे भी सर्विसेज का नाम यूज किया जाता है तो यही कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है कि जी आपने सर्विसेज की कम्युनिकेशन को सेल कर रहे हैं। तो जब कम्युनिकेशन को सेल कर रहे हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जी इंसान सोचे कि जी ये बिजनेस मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बेसिकली मैं नाजरीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि जी सर्विसेज के ऊपर फोकस करें। आज का दौर प्रोडक्ट का नहीं है बल्कि सर्विसेज का है। जितनी ज्यादा आप सर्विसेज, और सर्विसेज के लिए क्या, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, और अगर आप इस चीज को मैनेज करते हैं तो नो डाउट के यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी रेदर देन डूइंग अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन 9 to 6 10 इवन 3 to 4 hours 7 hours। तो बेसिकली सर्विसेज को यूज करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए, आप कसूर के रिहायशी हैं, तो कसूर के लोगों के लिए आपने जिम पासपोर्ट के सर्विसेज की क्या खिदमत सर अंजाम दी है? जिस तरह मैंने बताया कि हमारा जो बिजनेस है ना वो मेजरली टारगेट करता है B2B क्लाइंट्स को, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हमारी सिटी की बात की जाए तो हमारी सिटी में चूंकि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो बुले शाह पेपर मिल्स आपके पास है, टैनरीज का नाम कसूर में आपके पास है, लेदर की इंडस्ट्री कसूर का एक बहुत बड़ा कहने का मतलब एक ब्रांड है, नाम और अपनी अहमियत रखती है। तो आपने इनको टारगेट क्यों नहीं किया? इनको टारगेट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 3-4 हज़ार अपने एम्प्लॉय की सेहत के ऊपर ना वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। आपने किया कि नहीं? आप इनके पास गए हैं कि नहीं? नहीं, इनके पास नहीं गए, लेकिन इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास हम लाजमी गए हैं, लेकिन उनका रिस्पांस नहीं, कसूर के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। हमारा मेरी बेसिकली आपको या हमें जो अपने इलाके के लोगों को देख के खुशी होती है, उनकी हेल्थ की बात की जाए, उनकी अर्निंग की बात की जाए, यूसुफ इस्लाम की भी बात की जाए, तो उन्हें जो अपने शहर से वाबस्तगी थी वो दूसरी जगह से नहीं थी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से मैं कहूंगा कि आपकी जर्नल ऑब्जम्पशन दूसरे सिटीज के बारे में हो सकती है। आपने कसूर के ऊपर काम किया कि नहीं किया? नहीं, कसूर हमारी पाइपलाइन में है, क्योंकि मैं खुद इस सिटी से हूँ, तो आई वांट के जो है ना इस सिटी के जो शहरी हैं वो भी हमारी सर्विस यूज़ करें। हमारी ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी जाकर जिम पासपोर्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करे। और एप्लीकेशन का नाम क्या है? जिम पासपोर्ट है, प्ले स्टोर पे भी है और iOS स्टोर पे भी है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना प्लान देखें कौन सा आपको सूटेबल है। तो इंशाल्लाह 1-2 जिम्स के साथ मेरी कसूर में बात चल रही है, जिस तरह ये वहीद जिम है और मक्का जिम तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सैनमा मोड पे है। तो ये आप यहाँ पर यूटिलाइज करें। अगर आप जाते हैं लाहौर के अंदर, आप जॉब होल्डर हैं, तो आपको वहां पर अपने ऑफिस के नजदीक कोई अच्छी मतलब है कि कसूर के जो जिम्स हैं उनकी ओनर के साथ आपकी सेटलमेंट हो चुकी हुई है? बिल्कुल फाइनलाइज। जो और कंपनीज है जिनको आप टारगेट कर चुके हैं, अगर उनके एम्प्लॉइज यहाँ पे कसूर में रहते हैं तो वो इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी आप कर सकते हैं। इवन के आपको जो है ना वो फ्री मेंबरशिप इंशाल्लाह हम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये स्पेशल पैकेज होगा कसूर के लिए या फ्री मेंबरशिप का? नहीं, फ्री मेंबरशिप आपके लिए है। कसूर के लिए अगर कहेंगे तो हम इंशाल्लाह एक कूपन कोड जो है ना वो जनरेट कर देंगे जिसमें 20% डिस्काउंट होगा कसूर के अवाम के लिए। चलें जी, ये आवाज सिटी 49 चैनल के शुक्रगुजार भी हैं जिन्होंने एक ऐसे यंग नौजवान लड़के को इंट्रोड्यूस करवाया है, और ना सिर्फ उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया है बल्कि जिम पासपोर्ट की सर्विसेज के हवाले से भी उन्होंने 20% डिस्काउंट का एक अपना इंटरेस्ट शो किया है, और ये सिर्फ कसूर के लिए है। तो इसी हवाले से अगर बात की जाए तो आवाज सिटी 49 चैनल के भी शुक्रगुजार हैं, और जिम पासपोर्ट के को फाउंडर मिस्टर यूसुफ इनके भी शुक्रगुजार हैं। आप आवाज सिटी 49 चैनल के बारे में क्या कहेंगे? So what do you feel about presenting here and incoming for a communication regarding Gym Passport? नहीं जी, बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारी अपनी सिटी का भी एक चैनल है जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो ये जो चीज़ जो है ना हमारी सिटी की जो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव इमेज है, उसको जो है ना ये बखूबी जो है ना वो दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कसूर जो है ना कुछ बुरी चीज़ों की वजह से इंटरनेशनली फेमस हुआ है, लेकिन ये छोटी छोटी कोशिशें हैं जिनके थ्रू हम जो है ना इसको दोबारा इसका जो ऑरा है उसको हम रीगेन कर सकते हैं इंशाल्लाह जी। आवाज सिटी 49 चैनल की मदद से हम ऐसे ही नौजवान लड़कों को इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे जो कसूर की तारीख में या पूरी दुनिया में कसूर के नाम को रोशन करेंगे। जज़ाकल्लाह।